Okay, class. So our types of conjunctions, we were discussing two of the types of the conjunctions were left. But before that, I need to discuss about today's lecture. Then, if in the end, if we have a time, so I will be explaining them. If not, then we will be explaining it tomorrow, because from tomorrow onwards, we are going to start reading and understanding about your poems. So better to go through poetic devices and examples of poetic devices first before going through the poems. Okay, so let us start from the poetic devices first, but I will not be starting them from your general usage of poetic devices, that is simile and personification and all these type of the poetic devices. I will be firstly trying to start it from complicated ones. Okay, and which are important according to your exams as well. And we will not be wasting time on the poetic devices, which are basically you people are already basically studying about them. So let me tell you about the poetic devices. They are also called as figures of speech, and no need to note down anything today because I have already compiled notes related to poetic devices for you people. Will be sharing them after the class. You people only need to understand through examples. Okay? So poetic devices are also called as literary devices and figures of speech. And you should also know the purpose, basically purpose of poetic devices, that why our different writers or our different poets basically use poetic devices. कहने को तो हम बहुत कह देते हैं कि जी आज का लेक्चर हमारा poetic devices का है, आज हम poetic devices करेंगे. बट जी जी जवाब दे आर लेफ्ट, बट आई एम सेइंग कि हम उनको कंटिन्यू करेंगे कल. ठीक है, क्योंकि आज हाफ एन आवर है, सो आई थॉट के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस कर लें. ठीक है. So basically, class, in order to make our conversation, make our sentences creative, beautiful, and attractive, basically, we use poetic devices. For example, if I say that she is beautiful, is like very, 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 very beautiful. Okay? So we know that we have the exception or exceeding the beauty of Isa, but the sentence is like not that much attractive. But if I say that Isa is as beautiful as the moon, now this sentence is in English, लेकिन उर्दू में अगर मैं इसको उर्दू, लाइक आई एम द नेटिव स्पीकर ऑफ पश्तो, पश्तो में तो ये और भी प्यारा हो जाता है. लाइक उर्दू में अगर इसको कहा जाए कि इज़ा जे मून की तरह, चांद की तरह प्यारी है या खूबसूरत है, लाइक जस्ट एग्जांपल. सो वो जो बहुत 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 हमने यूज कर लिया, और सेकंड सेंटेंस को अगर हम कंपेयर करें, सो यू ऑल पीपल विल बी चूजिंग द सेकंड सेंटेंस बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी, बिकॉज ऑफ इट्स क्रिएटिविटी. ठीक है. सो दैट्स व्हाई पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन द राइटिंग्स इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई आवर राइटिंग्स. ठीक है. So the first important poetic device that today we will be covering is synecdoche. Synecdoche. Any idea about this one? This is class very very important type of the poetic device. जी जी नोट्स मैंने ऑलरेडी कंपाइल किए हैं, आप लोगों ने सिर्फ आज समझना है. ठीक है. Synecdoche basically is a poetic device. ठीक है. For example, पहले example let me mention it. For example, if I say that the White House has decided um, to continue elections. ठीक है. Other example is I have many mouths to feed. जूस कहकर जी ठीक है. ठीक है. अच्छा लाइक हाँ ठीक है. सो क्लास बेसिकली सिनेक्डिकी, एक तो इसकी प्रोनाउंसिएशन सेनेक्डोकी नहीं है, इट इज सिनेक्डिकी. सिनेक्डिकी. ठीक है. ओ को आपने थोड़ा सा साइलेंट करके लेके जाना है. सिनेक्डिकी. ठीक है. सिनेक्डिकी का मतलब ये होता है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप लाइक बहुत कोई बड़ी चीज है, आप उस बड़ी चीज का जिक्र नहीं कर रहे, आप उस बड़ी चीज में कोई छोटा सा हिस्सा उसका डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप
एक्सप्लेन ऐसा करते हैं कि उस बड़ी सी चीज को भी इंक्लूड करते हैं और उस छोटी सी चीज का जिक्र करके आप बड़ी सी चीज का जिक्र कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा मैम? जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है जी, द व्हाइट हाउस हैज डिसाइडेड टू कंटिन्यू इलेक्शंस। अभी जो व्हाइट हाउस है, इट इज नॉट समथिंग कि कोई घर है और उसका कलर जो है व्हाइट है। दिस इज बेसिकली द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, उसको हम कहते हैं व्हाइट हाउस। तो जब हम कहते हैं कि द व्हाइट हाउस हैज डिसाइडेड दिस एंड दैट, व्हाइट हाउस का मतलब है पूरे अमेरिका ने ये डिसाइड किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि इलेक्शंस होंगे या कंटिन्यू होंगे। अब हम छोटे से हिस्से का जिक्र करें, ठीक है, लेकिन पीछे हमारा कौन सा पूरा एक स्टेट है। इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मिटोनिमी बिकॉज दे आर कंसिडर्ड टू बी द सेम एस्पेक्ट्स। ठीक है, दोनों लाइक दोनों की यूसेज सेम ही है। ठीक है, उस पर भी मैं इसके बाद आती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जी, उर्दू में आप कहते हैं ना कि मैंने एक बोतल पी, अभी मैं बोतल पी के आया हूँ। अब बोतल पीने का मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने वो पूरी बोतल जो भी है बेसिकली, जो वो बनी हुई होती है, जिस चीज की, ग्लास की बनी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, वो भी हमने उसके साथ पी ली। इट्स मीन्स के बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द लिक्विड इन दैट बॉटल। ठीक है, इसी तरह हम कहते हैं कि आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड। फॉर एग्जाम्पल जस्ट सपोज कि कोई ब्रेड विनर है अपनी एक फैमिली का। जी जी, जवाब मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही थी, बट लाइक आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग इट्स नेम। ठीक है, उर्दू में जो आपका वो होता है ज़बुल मिसल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड। अब मेनी माउथ्स का ये मतलब नहीं है कि कोई आपके घर में बहुत ज्यादा चिड़िया हैं या कोई बहुत ज्यादा परिंदे हैं जिनको आपने बेसिकली फीड करना होता है। मेनी माउथ्स एक छोटे से पार्ट का आपने जिक्र किया और पीछे आपका क्या, इसका व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि आपके बहुत ज्यादा फैमिली में मेंबर्स हैं, उनको आपने फीड करना होता है। ठीक है, रेपिटेशन है ये है, सॉरी, डेफिनेशन ये है। आर यू राइटिंग द डेफिनेशन? बाय द वे आई हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड इट फॉर यू। डेफिनेशन इसकी ये है कि a figure of speech in which a part is used to represent the whole. A figure of speech in which a part is used to represent the whole. अब हमने एक हिस्से की बात की और पीछे हम पूरी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माउथ्स की हमने बात की और माउथ्स का मतलब है डिफरेंट मेंबर्स। A figure of speech which is used to discuss a part in order to represent a whole part. ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड। ब्रेड का मतलब ये, छोटे होके मैं सोचती थी ये ब्रेड विनर, इसमें तो सिर्फ ब्रेड, ये तो ब्रेड ही सिर्फ अर्न करते हैं। ठीक है, बाद में पता चला जी ये ब्रेड का मतलब होता है मनी, वेल्थ। ठीक है, लाइक वी टॉक अबाउट मनी, वी टॉक अबाउट आवर वेजेस बेसिकली। सो इट कैन आल्सो बी द एग्जांपल ऑफ सिनेक्टिक। ठीक है, क्लास समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखें जरा, लेंड मी योर ears। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखें, वी नीड सम न्यू फेसेस इन द टीम। अब आप लोग मुझे बताएं कि व्हाई वी आर सेइंग दैट दे बोथ आर द एग्जांपल्स ऑफ, आर द एग्जांपल्स ऑफ सिनेक्टिकी। पूरी नहीं है या आप कह रही हैं कि हैं? बिकॉज आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दैट, बट जहां तक मुझे याद पड़ा है वो बोतल वाली एग्जांपल हमने मिजाजे उसमें मुरसल। हाँ यस, मिजाज, इट इज मिजाजी मुरसल, इट इज नॉट जरबुल मिसल। क्योंकि जरबुल मिसल तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो प्रोवर्ब्स हो जाते हैं ना। ओके क्लास, ये बताएं जरा, व्हाई आई एम सेइंग दैट दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सिनेक्टिकी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम जवाब, नो प्रॉब्लम। ऑफर अटेंशन टू लिसन केयरफुली। ठीक है, अब ईयर्स का मतलब ये नहीं होता है क्लास कि आप किसी को अपने ईयर्स बोरो करें और वो आपसे दूसरा बोरो करे और आप बगैर ईयर्स की घूमते रहें। इसके पीछे पूरा एक एस्पेक्ट गिवन है कि यू नीड टू लिसन टू मी केयरफुली। क्या आप मेरी बात सुने, बैठे आराम से और मेरी बात सुने। ठीक है, पूरा एक मतलब ईयर्स की हमने बात की लेकिन उससे पीछे हमारा पूरा आइडिया छुपा हुआ है, बेसिकली हिडन है। ठीक है, वी नीड सम न्यू फेसेस इन द टीम।
अब फेसिस का क्या मतलब है कि प्यारे प्यारे फेसिस चाहिए हमें। ठीक है, हमने छोटे से पार्ट का जिक्र किया जो हमारी डेफिनेशन कह रही थी, लेकिन फेसिस का मतलब है कि वी नीड न्यू पीपल, वी नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल। ठीक है, सो आई होप नाउ द कंसेप्ट ऑफ सिनेक्टिक इज क्लियर। समझ आ गई क्लास अब आप लोगों को? लेट मी नो प्लीज। ओके। ओके। क्लास पर एक और आपके पास पोएटिक डिवाइस है, ठीक है, वो लाइक इनकी यूसेज सेम ही है, ठीक है, सिनेक्टिकी एंड इसको हम कहते हैं मिथोनिमी। ठीक है, लाइक दे हैव द सेम यूसेज समहाउ। ठीक है, अब सिनेक्टिकी की आप लोगों को समझ आ गई, अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इनकी जो यूसेज है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल अब आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर मैं ये कहूं कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है सिनेक्टिक की भी और मिटोनिमी की भी, उसकी डेफिनेशन भी वही है जो सिनेक्टिक की है, सिनेक्टिक की है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। हॉलीवुड is making too many remakes। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, इससे भी अच्छा अभी जा गए हैं जी, 14 अगस्त सेलिब्रेट करें। द नेक्स्ट वन इज ही रीड्स शेक्सपियर। ओके मोहम्मद, गुड एग्जाम्पल। ठीक है अब्दुल, गुड। अब मुझे आप लोग ये बताएं, अच्छा सिनेक्टिक की एंड मेटोनिमी क्लास दे आर बोथ द सेम थिंग्स। ठीक है, जो डेफिनेशन आप लोग की सिनेक्टिक की है वो आपकी मेटोनिमी की है। तो जल्दी से बताएं कि व्हाई वी आर सेइंग दैट द फर्स्ट वन इज द एग्जांपल ऑफ बोथ। एनी आइडिया? और ये बहुत आता है आपके पेपर में। अच्छा क्लास, आप दोनों ऑप्शंस नहीं, एक ही ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन गिवन होता है। ठीक है, दोनों ऑप्शंस गिवन नहीं होते, ये आप लोगों ने डू नॉट गेट वरी अबाउट दिस थिंग। देखिए ये जो पेन है ना बेसिकली, ये आप इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पेन को साथ रखें, ठीक है, एक वाइट बोर्ड बोर्ड मार्कर को साथ रखें और एक स्वॉर्ड को आप साथ रखें और आप कहें कि जी ये पेन जो है वो तो लाइट वेट है, स्वॉर्ड तो ज्यादा उसकी वेटेज है। इस सेंटेंस के पीछे जो पूरा क्लास आइडिया है आप लोगों ने वो समझना है। ठीक है, वो लाइक इन द होली कुरान अल्लाह अलमाइटी सेज दैट जो ऑल दोस पीपल हु आर अनएजुकेटेड दे कैन नॉट बी लाइक become equal to educated people। ठीक है, so pen is something which describes your knowledge, which describes your education, which describes your basically civilized people। Sword is something which describes your people who are like warriors, who are uncivilized, who are uneducated। सो पेन और स्वॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम उन दोनों के वेट को बेसिकली कंपेयर करें, पीछे पूरा उनका हिडन मीनिंग है, हिडन आइडियाज है। मतलब छोटे से पार्ट को हम डिस्क्राइब करें, पीछे उनकी हिडन मीनिंग्स है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दे आर द एग्जांपल ऑफ सिनेक्टिकी एंड मेटोनिमी। ठीक है, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? अब कहते हैं जी हॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड। क्या है भाई ये? वुड कौन सी लकड़ी है ये? हमें तो नहीं पता। ठीक है,
but it is not something that is luxury or something wood. Basically, they are representing whole countries. They are having their meanings. ठीक है? So what do you think that what is meant by Hollywood industry? But which industry? Film industry. ठीक है. बट ये एक आपका किसी कंट्री को ये डिस्क्राइब करता है ना, किसी एक कंट्री के बेसिकली इंडस्ट्री को. ये आपके अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री को डिस्क्राइब करता है. उसकी जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या, अब हॉलीवुड, अब किसी को नहीं पता तो वो कहेगा कि तो हॉलीवुड क्या चीज है, ये तो कोई, हम वी आर टॉकिंग अबाउट वुड. बट हॉलीवुड बेसिकली इज telling you about the cinema of your United States of America. Not all actors, Abdul, they are specifically talking about United States of America. तो उसमें जो सिनेमा वर्क करते हैं उसको हम हॉलीवुड. जरा से पार्ट को हमने डिस्क्राइब किया, पीछे एक पूरा आपके पास हिडन मीनिंग है. ये सब लाइक इनके यूसेज सेम है तो लाइक यू कैन से. ठीक है. ही रीड्स शेक्सपियर. अब ये बताएं मुझे कि व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिनेक्टिकी एंड मेथोनिमी. Okay, so are you people having another class after this? Let me know, please. शेक्सपियर का मतलब ये नहीं कि he or she is sitting in front of Shakespeare and he or she is basically reading his facial expressions. It means कि basically someone is reading the writings of Shakespeare. शेक्सपियर की बात करें और हम पीछे पूरा एक हिडन मीनिंग इसे कंसिडर करें. ठीक है. सो दिस इज व्हाट your synecdoche means. I hope class के now like you people must have got the concept. अच्छा, अगर आपकी 5 पर है क्लास तो हम थोड़े से और पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं जस्ट टू बी ऑन अ. वो जब हम पॉइंट्स में करेंगे ना तो मैं आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है. इनके यूसेज बहुत इजी है. सो क्लास शुड वी कंटिन्यू, प्लीज लेट मी नो. ओके. ओके, थैंक यू. सो द नेक्स्ट वन इज, लेट मी राइट फर्स्ट. ठीक है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस. Johnny है या synecdoche. This is the example of synecdoche and metonymy both, but more specifically, it is the example of synecdoche. ठीक है मोहम्मद, ठीक है. ओके. यस. आप लोग लाइक प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने ऑलरेडी आप लोगों के ये नोट्स कंपाइल किए हैं तो मैं शेयर करूंगी. ओ क्लास, ऑफ इमेजरी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पोएटिक डिवाइस? आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस बिकॉज यू पीपल मस्ट हैव नॉलेज. ऑफ कोर्स आई विल बी टेलिंग यू, बट क्यों मैम, व्हाई आर यू सेइंग दैट?
एक तो लाइक वी हैव ओनली 20 मिनट्स, उसमें आप लोगों से डिसाइड नहीं हो रहा कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना. यस, दे आर सेम. Okay, class. So, use of language basically, imagery is the word which has the origin from image. अच्छा जी, लें क्लास आगे आ गई. ठीक है क्लास, ठीक है. ठीक है क्लास, ले लें आप लोग पाक स्टडीज की क्लास फिर, लेकिन कल ये है कि आई थॉट कि हम पोइम स्टार्ट करेंगे, लेकिन ओके. यस, आई थिंक 25th, because I have seen the basically story updated by our assistant. All the very best, class. My prayers are with you people. I hope you people will be doing great. ठीक है. Okay, class. So we will be continuing it from tomorrow. Like you can go for your park studies. See you then. Take care and Allah Hafiz. Okay, yes, Talha. You're right.